गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली अपडेट्स विद कृष्ण शर्मा। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस 2021 के क्लैट पेपर की। तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब क्लैट एग्ज़ाम भी आने वाला है और जब तक हम प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं सोल्व करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग क्लैट एग्ज़ाम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। होप यू ऑल आर वेल। चलिए देन स्टार्ट। In jurisprudence, distinction between theoretical and practical aspects of law is the basis of an independent science of law, the purpose of which is not to subserve practical ends but to serve pure knowledge. प्योर नॉलेज, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एंड आप भी अंडरलाइन करने की कोशिश करिएगा। विच इज़ कंसर्न विथ फैक्ट्स बट नॉट विथ वर्ड्स। एट द प्रेजेंट टाइम द jurist science is an exclusively a practical science of law, and adequate methods have been evolved for the application of law by the judges. The result of the situation is that its teaching on the subject of law and legal relations, subject matter and method, can be given only by the practical science of law. It aims to supply the judge with legal proposition formulated in the most general terms possible in order that the greatest possible number of decisions might be derived from them. It teaches the judge how to apply the general propositions to the specific cases. However, the human thinking is necessarily dominated by the underlying purpose, and the thinking of the jurist is conditioned by the practical purpose pursued by juristic science. The jurist does not mean by law that which live and is operative in human society as law, but law exclusively important in the administration of justice as rule according to which the judge must decide the legal disputes. Jurist sciences has a whole proceeds by abstraction and deductions, but sometimes loses contact with reality. The role of human conduct and the rule according to which the judge decide legal disputes may be distinct. A layman does not always act according to the rules which the judge apply for the judicial decision as the rules to guide human conduct. However, the scientific view has given way to the practical view, updated to the requirements of the judicial officials according to which they must proceed, but they arrive at the view by a jump in their personal thinking. They mean that the rules according to which courts decide are the rules according to which men ought to regulate their conduct in the respect. It is altogether different from true science. It is true that judicial decision influence the conduct of man, but we must first of all inquiry to what extent this is true and upon what circumstances it depends. ये हमारा फर्स्ट पैरा था इसका, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके हर पैरा के 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो हम अब 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे करने के, ठीक है। द पर्पस ऑफ द साइंस ऑफ लॉ इज टू अचीव। जो जूरिस्प्रूडेंस होते हैं इसको हम साइंस ऑफ लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ के बारे में एकदम डीपली नॉलेज रखता है जूरिस्प्रूडेंस। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, एंड पुट सर्व प्योर नॉलेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द पर्पस ऑफ द साइंस ऑफ लॉ इज टू अचीव, हमको क्या करता है? प्योर नॉलेज बेस्ड ऑन रियलिटी। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन, द प्रिवेलिंग मेथड ऑफ द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ लॉ इज द मेथड विच इज एम्प्लॉयड बाय जजेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। Now third question, the judicial thinking is prominently guided by underlying principle of judicial morality, नहीं। Principles of professional ethics, नहीं। Practical purpose followed by judicial science, yes। The present judicial science is losing scientific temperament because the dash which of the following is the most appropriate answer? Now judges are not professionally trained, गलत हो गया। Judicial abstraction and deduction are different from reality, हो सकता है।
प्रैक्टिकल पर्पसेस फॉलोड बाय जुडिशियल साइंस, नहीं होगा। नोशंस फॉर द जुडिशियल डिसीजन आर इंटरफेयर फ्रॉम द डिसीजन ऑफ फॉरेन, नहीं, तो इसका क्या होगा बी। जुडिशियल एब्स्ट्रैक्शन और डिडक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। नाउ फिफ्थ, द लीगल प्रोपोजिशन आर जनरली बेस्ड ऑन जनरलाइज पॉसिबिलिटी, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द जुडिशियल एक्सेप्शंस फ्रॉम लेमैन इज द कंडक्ट ऑफ मैन और टू बी ह्यूमन, ठीक है। एंड सेवेंथ क्वेश्चन, इसका ये रहा, ये इसका सेकंड पैरा आ गया है। अब इसको हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ह्यूमन लिबर्टी इज अ प्रीशियस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, इट इज़ अ tenuous as tenuous can be liberty, survives by the vigilance of her citizens on the cacophony of the media and in the dusty corridors of court alive to the rule of law. The doors of the court cannot be closed to a citizen who is able to use prime facie। आप लोगों को prime facie पता होगा क्या होता है, कमेंट में बताइएगा सब लोग। That the instrumentally of the state is being weaponized for using the force of criminal law to the detriment of human liberty, the basic entitlement of every citizen who is faced with allegations of criminal wrongdoing। वो क्रिमिनल एलिगेशन फेस कर रहा है, क्या उसने जो गलत काम किए हैं। इज दैट देन इन्वेस्टिगेट प्रोसेस शुड बी फेयर। इन्वेस्टिगेट प्रोसेस कैसा होना है, फेयर होना चाहिए, ताकि जो जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं एक्यूज के ऊपर, अगर उसने एक्यूज्ड है वो तो सच में उसने अगर कोई क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर बाय चांस उस पर एलिगेशंस लगे हैं और उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो जब तक फेयर ट्रायल नहीं होगा तब तक उसको एलिगेशन से बरी नहीं किया जा सकता है। दिस इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस अंडर आर्टिकल 14 एंड ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। देन सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड द गिवन प्रिंसिपल इन, ये केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल दिया था। केस का नाम क्या था, अन्नम मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साइटेशन क्या थी, ऑल इंडिया रैंक 2021 सुप्रीम कोर्ट 1। SC होता है सुप्रीम कोर्ट, SCC होता है तो क्या होता है सुप्रीम कोर्ट केस, विच बाइंड दैट द कोर्ट्स मस्ट बी अलाइव टू द नीड टू सेफगार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट while ensuring that the due enforcement of criminal law is not obstructed. The fair investigation of crime is an aid to its equality. It is the duty of courts across the spectrum, the district judiciary, the high courts and the Supreme Court, to ensure that then criminal law does not become a weapon for the selective harassment of citizens. The inherent power of the High Court must be construed as an aid to preserve the constitutional value of liberty. The writ of liberty, writ कितने टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, द writ of liberty runs through the fabric of the constitution. The need to ensure fair investigation of crime is undoubtedly important in itself, because it protects at one level the rights of the victim, had at a more fundamental level the societal interest it ensuring that crime is investigated and dealt in accordance with law। मतलब जो भी क्राइम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किसके अकॉर्डिंग किया जाए, लॉ के अकॉर्डिंग किया जाए। On the other hand, the misuse of the criminal law is a matter of which the courts in this country must be alive। अब इसके हम क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन लिबर्टी इज अनट्रू। लिबर्टी इज अ प्रीशियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लिबर्टी इज अ लिमिटेड फंडामेंटल राइट, नो। लिबर्टी इज अ फ्रेगमेंट कॉन्सेप्ट, नो। लिबर्टी इज अ इनफ्रिंजिबल कॉन्सेप्ट, तो इसका होगा डी। द लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन इज अलाइव बिकॉज ऑफ लाइवली,
मीडिया नो, जुडिशरी नो, मीडिया एंड जुडिशरी बोथ, ओके। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर नो। अब इसमें हमको कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, ये इसमें हमको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको बताना है। फॉर सीकिंग द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट द पिटिशनर हैज़ टू प्राइम फेशिया establish that the state agency has misused the force of a criminal law which causes casualty for the human liberty। मैंने यहाँ पे बताया था ना प्राइम फेसिया, ये रहा देखिए प्राइम फेसिया। कमेंट में बताना इसका मतलब क्या होता है फेसिया, ठीक है। establish that the state agency has misused the force of criminal law which causes casualty for the human liberty। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, द deprivation of liberty via rule by law is variable up to 24 hours। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, अब इनको क्या करते हैं ट्रू और अनट्रू बताना है इसमें। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, फर्स्ट आर अनट्रू and first is true and second is untrue, second is true and first is untrue। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सी, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज अनट्रू, ठीक है। द फेयर इन्वेस्टिगेशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल इज अ गारंटी। हमको फेयर इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की गारंटी देता है, क्रिमिनल ट्रायल की, कि अगर आपका क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है तो उसमें आपका फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी तो एक्यूज्ड को सज़ा मिलेगी। अगर एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस नहीं किया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फेयर ट्रायल इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट आर्बिट्रेरनेस नहीं, ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगेंस्ट आर्बिट्रेरनेस एंड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका ये होगा क्या होगा सी, अगेंस्ट आर्बिट्रेरनेस एंड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि फेयर ट्रायल इंपॉर्टेंट है। विदाउट फेयर ट्रायल क्या होगा, एक्यूज्ड को एक्यूटल नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंश्योरिंग दैट क्राइम इज फेयरली इन्वेस्टिगेटेड एंड डेल्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटली अ मैटर ऑफ डैश। अब इसमें बताना है एंश्योरिंग द क्राइम इज फेयरली इन्वेस्टिगेटेड एंड डेल्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल राइट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। इन द गिवन एक्सपर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लिबर्टी द कोर्ट हैज़ गिवन एम्फासिस ऑन, तो इसमें क्या होगा, रोल ऑफ सोसाइटी नहीं, रोल ऑफ द कोर्ट्स एट ऑल लेवल्स नहीं, बैलेंस बिटवीन द ड्यू इन्फोर्समेंट एंड प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉ नो। बट इसमें बी भी हमको सही लग रहा है एंड सी भी सही लग रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, बोथ हो जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ द कोर्ट्स एट ऑल लेवल्स, ठीक है, बैलेंस बिटवीन द ड्यू इन्फॉर्मेशन प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉ, ओके। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप 2 पैरास कंप्लीट करके बताइए कमेंट में आपको कैसे लगा एंड कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो।